सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। I will say the 12th shloka of 12th chapter. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। त्यागः शान्ति अनन्तरम्. That's Bhagavan is telling the path, spiritual path, and actually this chapter concludes with a lot of things what this shloka has said. That we'll see when we come to the end of this chapter, 17th. Now we'll say the 7th shloka of 2nd chapter, which is our prarthana, is Arjun's prarthana too. कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः कार्पण्यदोषोपहत् स्वभावः पृच्छामि त्वामधर्मसम्मूढचेताः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयःश्च निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. So Arjuna is saying, Bhagavan, I am deluded, and because of the delusion and the shrinking of my consciousness, karpanya dosh, weakness of my consciousness, or weaker than, like we say, manobal, loss of manobal. My swabhav is upahat, it is hurt, it is impaired. And my swabhav is like right now in this situation, he's a kshatriya, he's a warrior, and he has a duty to perform. But he said, I'm confused now. I'm not able to perform. My swabhav is not allowing me to do that. So that's why he said, I'm coming to you as a shishya and guide me to Shreyas, which is the best option is at this time. For Shreyas is always is a situation where you decide what is best in this situation. So that's what Arjun. So that's Arjun's prarthana. Actually, that's our prarthana too. That's the reason we read Bhagavad Gita or any other thing, because this we all encounter the same thing in our life, day to day, every day, or many times in life. So that's the reason it is very relevant, the teaching, and it is not just an academic exercise. It's a transformative teaching. I mean, if we take it the way, and it is actually. So yeah, so we are on 17th chapter, which is Shraddha Traya Vibhag Yoga. Arjuna asked the question at the end of the 16th chapter, and he's asking Bhagavan if somebody doesn't know the Shastra, because Bhagavan says that Shastra is Praman, and we have to find the right Praman. So he says if somebody doesn't have knowledge of Shastra, that means this person doesn't know the right vidhi, assuming. But his or her Shraddha will, what kind of Shraddha will this person will have? Because you are saying Shastra, then Bhagavan started answering in the 17th chapter. That's what is called Shraddha. So Arjun's question was what kind of Shraddha it is. And then Bhagavan started, there are 3 types of Shraddha: Sattvic, Rajasic, and Tamasic. Basically, if you look at 14th chapter, that is the fundamental teaching, that all our, within us, there are 3 guna, because we are made of, this is a very, very, very fundamental teaching, which is called Sankhya also, which is used in yoga also. A lot of other philosophy, darshan, has the same thing, right? We are made of Prakriti. Prakriti means nature. Everything is just in us.
And then Prakriti is made of three gun, Sattva, Rajas, and Tamas. And we know, like simple, Sattva is when you are in peaceful mind, you are happy, you feel light, then it is Sattva gun. And this is all we'll all experience. I mean, nothing rocket science in this. Even chota bacha, and in my children class we talk and everybody gets it. उनको भी समझ आता है. I ask the example, can you give the, last time we did some exercise, can you give the example when you think your sattva gun was high, rajas, sajo gun was, tamo gun was high. And you won't believe they gave the answer after the weekend. Last week we went for a sleepover to my friend's house and we kept playing the whole night. It was a lot of tamas and rajas gun. In spite of parents said. And then I said, bro, Sattvagun. Oh, we were doing the pratana, and that time I felt like so good. So that is Sattvagun. So this is a 6-year, 7-year-old kid can say that. So it is true for all of us. So that is the fundamental behind all these things. So Bhagavan already said that three gun, and the Shraddha is driven by that Swabhav also. If first or second slok of this chapter, Bhagavan says, Swabhav drives the Shraddha. And Swabhav comes from Trigun. So now Swabhav drives the Shraddha. So Shraddha is also Triguni. Satvik, Rajasic, Tamasic. So, and that's what Bhagavan started. Then Bhagavan is a teacher, like any other good teacher. He doesn't want to leave half, but more examples, more metaphors, more understanding, go deeper. And so Bhagavan said, oh, yeah, not only Shraddha, there is a, see, tapas is 3 types. There is a yajna of 3 types. There is a vak, like the we speak, that is of 3 types. We saw that right out. So Bhagavan says everything. And again, going back to that, we are driven by Swabhav. We are all driven by Swabhav. We all know that, right? So 3 types of Swabhav because of the Prakriti gun. In fact, Jain Parampara mein to Mahavir Swami's definition of dharma is Vattu Swabhav is dharma. Vattu means Vasti. Vastu means, yeah, we are object to. Swabhav is dharma, he says. And it's correct, actually. It's very, very right definition. Swabhav is dharma. Because if my Swabhav is sattvic, whatever amount of good bad I want to do, it will something stop from me from within. My nature that, oh, don't do this. And whatever, like if I have tamas or rajas, whatever amount of imagination I have, कि मैं कुछ कर दूंगा, होगा नहीं. Because that rajogun, tamogun will drive. And that's what Bhagavan says. So with that we came, in fact, he came last time, we'll repeat that 19. In fact, the Dan is also of 3 types. That's what we stopped. And we'll continue from there. Satvik Dan. I think the 20th slok. So Bhagavan is talking about even Dan is of 3 types. He talked about yajna 3 types, Rajasic yajna, like Ravan's yajna is Tamasic yajna. He did yajna, but he was doing yajna to, doesn't matter, I had to kill people, but I want to be the ruler of this world. That is Tamasic yajna. So now we come to the Dan also. Bhagavan says 3 types. And remember, Vinobaji's model is perfect, right? We have 3 institution. We are not just one person. We have 3-dimensional personality or institution within us. One is my body, my personal identity, myself. Second is the surrounding, the nature around me, the universe. That's also part of me. And the third is the samaj, the society around me, the parents and relatives, friends, neighborhood. That's it. We are made of 3, and now that's the 3-dimensional life we have. So Vinobaji gave that model based on this chapter. So what he is saying, because Bhagavan says tap, yajna, dan. Vinobaji has done, he was a chintak vicharak, so he brought this. And I like that. So I had taken that model very close to, very deep inside me, and I love that, right? So what he is saying, because Bhagavan says there is a tap. So his tap is for sharir, for yourself. Tap means austerities or penance. That is for me. I don't want somebody else to do tap. I had to do tap. So that is for me. Then he says yajna is for the nature, prakriti. Whatever, and he gives example, we consume the prakriti. We are a consumer. So let's become a contributor. So contributorship is a yajna. It is not just Agnihotra is a yajna. That also has a same purpose, Agnihotra. Purifying the atmosphere, sharing with everyone, whatever we have. I have some good herbs and thing, and I put in Agni, and so the same concept, right? That's why we call it Tyag.
त्याग is sacrifice is a loose word, but and then Vinobaji said third one is दान. So दान is for the society. दान का मतलब यहाँ पर just donation नहीं है, it is the ऋण. I owe, it's not I am giving. हाँ नहीं, मेरे को वो word we have used दान, दानम ददाति, I have to give, that's why we the दान word has come. उसका मीनिंग बहुत कुछ डिफरेंट हो गया है, चैरिटी और दान हो गया है. इट इज अ कर्तव्य. भगवान ने very क्लियर कर दिया, दान इज अ कर्तव्य. ऑल थ्री आर कर्तव्य. तपस इज अ कर्तव्य, यज्ञ इज अ कर्तव्य, दान इज ऑल्सो कर्तव्य. आई सोसाइटी को मुझे शेयर करना है, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज नॉट दान. वो तो हम लोग बोलते हैं, बट भगवान इज वेरी क्लियर. So the Vinobaji has put it right model. So दान is for the samaj, for the society, for anyone you see. That is what. And we talk about Panchayagya all the time. Panchayagya is the best model given by our Shastra. If we do Panchayagya, we pay all this debt. That's where we stopped. So now we'll continue with 20th shlok about dhan. So 20th shlok of 17th chapter. Datavyam iti yaddanam दातव्यमिति यद्दानं diyate anupakarine दीयते अनुपकारिणे deshe kale cha patre cha देशे काले च पात्रे च taddanam satvikam smritam. तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है. ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है. और देश और काल की टिप्पणी में लिखा है, जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है. और पात्र के टिप्पणी में लिखा है, भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं. और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान, ब्राह्मण जन, धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं. Yeah, I think Shripaji is there, but if you have somebody... I have that English. Yeah, you can read that. Yeah. That gift which is given to one who does nothing in return, knowing it to be a duty, it to give in a fit time and place to a worthy person, and that gift is held to be sattvic. Yeah. So in other words, you don't give it with the intent that he's going to turn around and give it back to me as a rin. That's correct. Yeah. So but majority time, if you're giving with that feeling that, oh, it will come back, yeah, then next shlok will go on with that. That's rajasic. So here it's a anupakarane. We are not expecting anything. It is giving as a duty. Then it becomes sattvic dan. And there is a famous story in our Shastra, Dadhichi Rishi. There was a story. The Purana stories are a lot of meaningful. I mean, if you just break the story into pieces, you won't get anything. But the message is important. So Dadhichi Rishi, very famous story we used to read in childhood or Panchatantra. So there was a time where one demon was there, whatever, Vakrasur, and he was he got the boon from Brahmaji that he cannot be killed by ordinary weapons. So even not Indrastra, and then he started killing people here and there, and everybody got disturbed. Indra, अरे ये तो मरता नहीं है. तो उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला कि उसको वरदान तो मैंने दिया, लेकिन एक था कि ये और किसी भी अस्त्र से नहीं मरेगा, शस्त्र से, ये जो वेपन होते हैं इससे, क्योंकि उसको वरदान था. तो लोगों ने पूछा क्या करें, तो उन्होंने बोला कि अगर किसी की बोन से अगर आप थंडर बोल्ट बनाओ अस्त्र, तो उससे मर सकता है, क्योंकि ये बाकी तो ऑर्डिनरी अस्त्र उसको वरदान है उसको. उन्होंने कहा ऐसी बोन, बोले ऐसा किसी योगी की बोन होनी चाहिए जो इतनी स्ट्रांग हो, ऑर्डिनरी मैन बोन विल नॉट हेल्प. तो कौन है, बताया दधीची ऋषि एक हैं, वो बहुत बड़े योगी हैं, तपस्या में बैठे हैं, उनसे पूछो अगर वो दे दे तो स्टोरी गोज की वो लोग सब दधीची के पास गए, एंड देन जैसे तो दधीची ने कहा क्या प्रॉब्लम, उन्होंने कहा वो समाज को सता रहा है और आप अगर इफ यू कैन गिव योर बोन, ऐसा ब्रह्मा जी ने बोला है, तो बोले टेक इट, दैट्स इट. तो उन्होंने बोला लेकिन आपको पता नहीं कि बोन मीन्स यू हैव टू जस्ट डाई, देन विल टेक इट. ही सेड
ये शरीर तो समाज के लिए है, समाज ने दिया है, टेक इट। एंड द स्टोरी गोज लाइक कि उन्होंने जो देह त्याग दी तपस्या, जो भी समाधि लगा के, और उन्होंने कहा मेरी हड्डी ले जाना, एंड द वृत्रासुर को मार दिया। That is, so he says it's belongs to samaj, right? So it's कर्तव्य. So that's what he's saying. That दान is सात्विक दान. But जरूरत थी उस समय उनको समाज को, तो this body is not required right now. This body is meant to serve, but the best way is take my bones if you can make the thunderbolt or whatever, and then so दधीचि ऋषि की स्टोरी में पढ़ते हैं. That's called कर्तव्य. And then वो एक भगवान ने यहाँ पर वर्ड डाला है पात्र के हिसाब से। अब देखिए ये क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हो जाती है, हम अपनी अकल लगाने लगते हैं। उनका इंटेंट यहाँ पात्र से ये नहीं था कि आप जो अपनी जगह एनालिसिस करते फिरो। अब वो ही हो जाता है कि फिर हम कि इसको दें कि नहीं दें, आदमी ठीक ठाक दिखता है, ये तो जवान दिख रहा है, पैसे भी मांग रहा है, क्यों करते हो तुम लोग? दैट इज नॉट भगवान इंटेंट हियर। बट ही इज सेइंग यू यूज योर जजमेंट बट नॉट कीप एनालाइजिंग। अगर मन करता है तो दे दो। मेरे एक फ्रेंड है यहाँ पर डार्टमouth यूनिवर्सिटी में, वो ही वेंट टू इंडिया, ही वाज फ्रॉम कलकत्ता, तो अपने गोरे फ्रेंड को भी ले गया, प्रोफेसर है वो, द गोरा प्रोफेसर आल्सो वेंट टू हिम फर्स्ट टाइम फॉर टू इंडिया, कलकत्ता में। एंड ही सेड दिस टू लाइक इज अ ट्रू थिंग। ही सेड वो लोग लंच में अपने घर में ऐसे बैठे भोजन कर रहे थे, तो दरवाजे इंडिया में खुले रहते हैं, सामने सड़क पे लोग घूम, भिखारी भिखारी भी आते रहते, तो बोथ आर देयर ईटिंग, मदर वाज सर्विंग, किचन में से आके देती थी, एंड द भिखारी केम एंड दिस गाय आवर इंडियन प्रोफेसर ही डिडंट फील गुड बिकॉज ही सेड कि अभी गोरा आदमी एक दोस्त लेके आए हैं और ये भीख मांगने वाला आ गया, हम लोग लंच कर रहे हैं, ये मेरे को रोटी दे दो, बंगाली में उसने बोला। तो इन्होंने उसको बंगाली में डांट वाट दिया और वो चला गया। ये मदर अंदर से सुन रही थी, वो आई, उन्होंने बंगाली में आके प्रोफेसर को डांटा और अंदर चली गई। देन दिस वाइट गाय सेज कि यार आई डोंट गेट व्हाट हैज हैपेंड, you yelled at that beggar and your mother came from inside, yelled at you and you said sorry, and then so what was that? बंगाली में हुआ था, तूने बताया कि मैंने उसको डांटा कि तुम जवान हो, काम करते हो, यू आर बर्डन ऑन दिस अर्थ, क्योंकि आई फेल्ट कि भाई ये अमेरिका से आए। तो बोले व्हाट योर मदर सेड, शी केम इनसाइड, शी सेड हु आर यू टू टेल हिम दैट, इफ यू डिडंट वांट टू गिव हिम यू कुड हैव सेड कि प्लीज गो, बाबा आज नहीं देंगे, बट हु आर यू टू टेल कि you are on burden on earth, you don't do anything, you are privileged so you got this job and professor, he is not privileged, he didn't get the job, you're not supposed to say that. And then professor said wow, so then your mother is very educated. He said no, but there is a difference, I am educated, she is cultured, she knows, she's susanskrit, that's what it is. सो दैट्स व्हाट, सो दान भगवान ही नहीं बोला कि एनालाइज करो, देना है तो दे दो। उसकी माँ, उनकी माँ ने बड़ा अच्छा बोला कि तुम्हें क्या, तुम कौन होते हो, नहीं देना हो तो बस बोल दो, ज्यादा डोंट हैव टू येल एंड एनालाइज समबडी एल्स। दैट सो भगवान इज सेइंग ऐसा नहीं करना है, बट दैट इज सात्विक, भाव है तो दे दो। देन वी गो टू द नेक्स्ट राइट 21st, which is भगवान इज गोइंग टू राजसिक। यत्यु प्रत्युपकारार्थम प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्मृतम तद्दानम राजसं स्मृतम। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फलों को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। और क्लेश पूर्वक की टिप्पणी में लिखा है जैसे प्राय वर्तमान समय के चंदे इकट्ठे चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है। और प्रत्युपकार के प्रयोजन में टिप्पणी है अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से। और उद्देश्य रखकर दिए जाने की टिप्पणी में लिखा है अर्थात मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए अथवा रोगादि के निवृत्ति के लिए प्रत्युपकार। ये तो एकदम परफेक्ट मॉडर्न डोनेशन की परिभाषा है। पढ़िए शिवाम जी, आप यहाँ देखिए इंग्लिश वाले में यही होगा, उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन इफ यू कैन रीड या दैट्स फाइन। Oh, you're on mute, Shivanji. It's like if you're reading. Anyway, so yeah, so Bhagwan. Sorry, I was muted. Okay. And that gift which is given with a view to receiving in return, or looking for fruit again, or reluctantly, is held to be rajasic. Yeah, it's very simple. This we all know. क्योंकि हम सब ज्यादातर राजसिक दान देने वाले हैं। मैं तो बहुत चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन काम करता हूँ, तो
this is happens, like we have to sometimes force, oh, empty your pocket, right? अरे निकालो यार, पैसे निकालो, दे दो। तो reluctantly, अरे चलो यार आपने मांगा दे देते हैं, अरे नेताजी मांग रहे दे देते हैं. So that's what Bhagwan is Raja. So majority things happen these days is Rajasic. There will be a plaque of your name or whatever award, and that's what they're saying. मान बढ़ाई के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, you be recognized as a big donor, and this is very modern definition. ये कब बताई भगवान ने? 5000 साल पहले. उसके पहले की होगी, तो भगवान ने बताई. तो उस समय जब ये हालत थी, आप सोचिए कि दैट टाइम भी लोग ऐसे होंगे, तो अभी तो क्या हालत हो गई. इट्स लाइक दैट, वी आर वेरी डिफरेंट. अभी तो वी आर so self-centered and we are so focused on our own things that so that's what Bhagwan is Rajasic. And why Bhagwan is telling, that is what the whole chapter is, right? This is this Rajas, 14th chapter mein, any kind of Rajas, whether it is a dan or it is a yajna or it is a tap or it is a swabhav, is an impediment in spiritual progress. आध्यात्म में आप कितना भी भजन कर लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर रजस और तमस है, then the आध्यात्मिक progress, inner growth will not take place. That is the message here. So that's the thing. If we are doing dan and we are in that what defined here, then there is a problem here. And then of course tamasic, right? आदेश काले यद्दानम आदेश काले यद्यानम अपात्रेभ्य दीयते पात्रेयभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम असत्कृतमवज्ञातम तत्तामस दानम उदारतम तत्तामसमुदाहृतम. और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है. और कुपात्रों की टिप्पणी में लिखा है, अर्थात मद्य मांसादि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए. Yeah, right. The gift that is given at a wrong place and time, wrong place and time, to unworthy persons without respect or with insult is declared to be tamasic. Exactly. So that story, when I just said that applies here, right? So mother said, "Who are you to yell at the beggar? Just say no, sorry. That's it." So that's what Bhagwan is saying कि अगर क्लेश पूर्वक दिया जाता है, like you are yelling and you are not happy, and then it is tamas. Or then another word is apatre. मतलब that is what Bhagwan is saying कि you can make a judgment कि अपात्र तो नहीं है. जैसे for example, if you know this person might be a criminal, then you make a judgment that if you give donation, this may be misused, right? So that make a judgment there, but not like analyzing who's bad, who's right. और जजमेंट में उसमें हम लोग कॉमिक पढ़ते थे, उसमें कहानी भी थी बहुत बढ़िया, लाइक वो सुपंदी वाले में. If the supandi is going and there is a blind guy, beggar आंख बंद करके बैठा हुआ है, and he says कि बाबा कुछ दे दो, and then he says कि रुक जाता है देने के लिए, बट बोलता है कि मैं दे तो दूं, लेकिन आप बोले मैं अंधा हूँ इसलिए भीख मांग रहा हूँ. तो बोले बट मैं कैसे, हाउ डू आई कंफर्म कि तुम अंधे हो? तो वो बोलता है कि आप वो सामने वाला पेड़ देख रहे हो? वो अंधा पूछता है, वो बोलता है हाँ देख रहा हूँ. आपको दिख रहा है? हाँ. वो मेरे को नहीं दिख रहा है. तो बोला अच्छा फिर तुम अंधे, उसको दान दे देता है. सो नाउ यू हैव टू मेक ए जजमेंट कि वो आपको बता रहा है वो पेड़ दिख रहा है और मेरे को नहीं दिख रहा है. तो इसके लिए दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग कि you make a judgment but not deciding somebody else is good or bad. So यहाँ तक तो अभी now दान यज्ञ तप सब हो गया. Now this chapter is going to come to end, and Bhagwan has concluded 3 types of Shraddha, 3 types of दान, 3 types of तप. पूरी भगवत गीता में. Naveen bhai is here or not today? I don't know why. Maybe he was. Oh, yeah. So Puri Bhagavad Gita mein, I'm sure everybody has read Bhagavad Gita many times. Bhagwan has told many times कि भक्त कौन है, and he has talked about यज्ञ तप, सब कुछ बताया उन्होंने. But so far, of course, 6th chapter में he has told इंद्रिय निग्रह, मनो निग्रह के लिए भी there are ways like ध्यान करना.
बट अभी तक भगवान ने पूरी भगवत गीता में कहीं पर भी उपासना की टेक्निक पे बात नहीं करी। एक जगह बोला है 9 चैप्टर में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम अश्नामि। भगवान ने बोला कि मेरे को पत्र पुष्प भी दे दोगे तो मैं खुश हूँ, उतनी पूजा भी चलेगी। बट ही हैज नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक मेथड। दिस इज द ओनली टाइम, मेरा अपना जो स्टडी है, कि भगवान इज गिविंग द सिंपलेस्ट पूजा की, अगर उपासना की कोई सबसे सरल तरीका हो सकता है तो यहाँ पर दिया हुआ है। विल रीड दैट नेक्स्ट 3-4 श्लोक। बहुत ही बढ़िया तरीके से भगवान ने बताया कि सबसे सरल पूजा क्या होती है, एंड वंडरफुल एक्चुअली। विल सी दैट। आई मीन दैट्स ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, जो भी मैंने उसमें देखा हूँ। तो दिस पार्ट इज नेक्स्ट 3-4 श्लोक आर, I mean, very, very profound teaching here, and the very profound practical steps given, which anybody can follow. And I follow this, so I can say that anybody can follow. It's so simple. We'll read that wonderful part, next 3-4. इसमें पहली बार, and भगवान is a good teacher, right? Now श्रद्धा तो उन्होंने बता दी, but श्रद्धा is an underlying current in spiritual progress. बट ना क्वेश्चन में कम, ऑफ कोर्स अर्जुन तो जानता होगा, बट भगवान से कि आई विल टेल यू द मेथड आल्सो, कि भाई करना क्या है। जैसे कोई भी पूजा हम लोग करते हैं, टिपिकली एनी पूजा वी डू, देयर आर 3 थिंग्स इन दैट ऑब्जेक्ट ऑफ पूजा, इट कुड बी भगवान, और इट कुड बी तीर्थ यात्रा, और इट कुड बी शिवलिंग, और अभी जो भी है ऑब्जेक्ट ऑफ पूजा। देन सेकंड इज द मोड ऑफ पूजा, लाइक हाउ डू वी डू दैट। कोई अभिषेक करते हैं, कोई आरती करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई कुछ, सो दैट। एंड द थर्ड इज द मोटिव, कि उस पूजा के पीछे मोटिव, ऑब्वियसली नॉट मटेरियल मोटिव, लेकिन मटेरियल भी होता है लोगों का, कि मुझे ये मिल जाए या कुछ हो जाए, या किसी को बुद्धि मिल जाए, जो भी है। देयर आर 3 थिंग्स टिपिकली इन दिस सेज, आवर मोटिव इज लाइक आत्मशुद्धि, दैट्स द गोल। गीता पढ़ने वाले के लिए मटेरियल, तो अगर मटेरियल है तो फिर गीता पढ़ ही नहीं रहे हैं। आत्मशुद्धि इज द मोटिव, एंड देयर इज अ, लेकिन भगवान ने अब ये भगवान बताएंगे पूजा कि सिंपल कैसे कर सकते हैं, कैसे, दैट वर्ड इन दिस फ्यू श्लोक, वंडरफुल। सो 23rd श्लोक बहुत आई मीन आई विल गो ओवर दिस, आई लव दिस पार्ट, राइट। ओम तत्सदिति निर्देशो ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृतः, ब्राह्मणस्त्रिविध सॉरी, स्मृतः। ब्रह्मण त्रिविध स्थित, नॉट ब्रह्मण, ब्रह्मण, या ब्रह्मण त्रिविध स्थित स्मृतः। ब्रह्मणस्त्रिविधिः स्मृतः। Now ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। यज्ञाश्च विहिताः पुरा। और हे अर्जुन, ओम, तत्, सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। Om Tat Sat. This has been declared to be the triple designation of Brahman. By that were created formerly the Brahmanas, Vedas, and Yajnas. यज्ञ, राइट। सो नाउ भगवान देखिए यज्ञ की बात करके आएगा, तो यज्ञ क्या है। भगवान हैज, सो हियर ही इज सेइंग कि हु इज भगवान। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑलवेज आस्क, कि मैनिफेस्टेशन है, अनमैनिफेस्ट है भगवान, निर्गुण है, सगुण है, बहुत वेरियस डेफिनेशंस आर देयर। सो ही इज सेइंग ओम तात सत, देयर आर 3 we can call, these are designations, we can say nirdesh. Bhagavan says trividh nirdesh. Nirdesh means a designation, or we can say the direction we are, that's why nirdeshan is a direction. So Bhagavan says, Bhagavan is saying कि भगवान को अगर जानना है तो ये 3 नाम है भगवान के, ओम, tat और सत। So Om, we'll talk about Om little later, but let's say simple is Om. By definition, Om is avati iti Om. Avati means protection. अवतु, जैसे हम लोग बोलते हैं सहनाव अवतु में, तो वर्ड अवतु है, सेम ओम से आया है, प्रोटेक्शन। सो द ओम इज अ प्रोटेक्टर, एंड या ऑब्वियसली भगवान इज अ प्रोटेक्टर। सो ओम इज फर्स्ट, विल गो लिटिल डीपर इनटू ओम, बट लेट्स टेक द सेकंड। सो ओम इज अ प्रोटेक्टर। द सेकंड इज तत्, which is that which is cannot be objectified.
बिकॉज भगवान, अभी हम लोग अवतार लेते हैं तो बोल देते हैं कि भगवान राम है, ये कृष्ण है, बिकॉज दे बिकम ऑब्जेक्ट, बिकॉज अवतार ले लिया। बट अदरवाइज भगवान तो निर्गुण निराकार है। वी कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई भगवान is this because now avatar is, there is a purpose of that and we all know that there is a reason avatar आते हैं, लेकिन otherwise भगवान is not like we are objectified. संजय मेहता body है, this is all objects. So भगवान, that is tat. That means that word is that which cannot be objectified, that is tat. भगवान का वो attribute है, या one is the name of भगवान. And this third is sat. Sat is like which is existence, and we all know that existence has no beginning, no end. अभी वो बिग बैंग हुआ होगा या हम पृथ्वी कैसे बनी, बट nobody knows the beginning and nobody knows the end of existence. By definition, existence is existence. That's the definition. There is nothing, and that is सत, and that's उसी से सत्य बना, बाद में बना, लेकिन सत is that being, the existence, eternal reality. There we have used the adjective लगाया reality में. Reality is actually reality. There is nothing to say, but we use eternal. Actually सनातन धर्म में शब्द सनातन भी उसी से आया, which is always there. There is no beginning, no end, and that is भगवान. क्या बढ़िया बात है. Om, which is the protector, and we'll talk about Om a little more. Tat, which is unobjectified, it is not, we cannot objectify भगवान. And the Sat, which is like existence, the reality, that we can say truth also in the sense, that is भगवान. So भगवान बोल रहे हैं कि ये तीन जो है भगवान के नाम हैं. भगवान, अब आप कितना आसान बना दिया भगवान ने, कि हम लोग बोलते हैं भगवान का नाम लो, तो भगवान, इसीलिए हम कहते हैं, हमारे यहाँ बोला है कि ओम तत्सत बोलते रहो, या सिर्फ ओम बोलो तो भी चलेगा. हरिओम तत्सत बोलो, भगवान हरि आगे लगा दिया थोड़ा सा, भगवान का नाम लगा दिया. So that is, if that is a मूल मंत्र. अगर जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब देखी हो, मैंने देखी है, पूरी तो नहीं पढ़ी, बट आई रेड सम पार्ट ऑफ इट. गुरु ग्रंथ साहब में जो पहला मूल मंत्र जिसको बोलते हैं, वो गुरु नानक ने बोला मूल मंत्र. मूल मंत्र बोला उन्होंने, मूल मंत्र शब्द है मूल मंत्र. उसमें उन्होंने, ग्रंथ साहब शुरू ही होती है एक ओंकार सतनाम. पहला शब्द गुरु ग्रंथ साहब का एक ओंकार सतनाम. एग्जैक्टली भगवान इससे है कि ये एक है जो परमेश्वर, उसका नाम ओंकार. उन्होंने ओंकार बोला है क्योंकि आज आप लोग जो लोग भाषा के, राम जी और पंकज भाई तो लैंग्वेज के मास्टर हैं, अकार मकार उकार तीन होते हैं संस्कृत. जो अल्फाबेट के आगे जो अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है तो अकार बोल देते हैं, तो ये ओंकार है, इसलिए उसमें ओंकार यूज किया उन्होंने. ओम एक ही बात है, ओम ओंकार. सो ग्रंथ साहब शुरू ही होती है एक ओंकार सतनाम, कि वो एक ही ओंकार है और उसका नाम सत्य है. एग्जैक्टली भगवान इज सेइंग ओम तत्सत. आई एम श्योर गुरु नानक जी ने भी ये पढ़ाई होगा, गीता होगी या और कोई से शास्त्र होगा वहीं से, क्योंकि पूरा जो मूल मंत्र है ग्रंथ साहब में पहला वाला, उसमें यही उन्होंने बोला, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक पुरखु, मतलब कर्ता पुरुष, पुरुष राइट. पूरी संस्कृत है उसमें. निर्भव, निर्वैर, जो अभय है, जो निर्वैर, जिसको कोई एनिमिटी नहीं है, नो द्वेष राइट. अकाल मूर्त, विच इज बियॉन्ड टाइम. काल मीन्स टाइम, विच इज बियॉन्ड टाइम इन ऑमनी प्रेजेंट, वी से सर्वव्यापी परमात्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, अंतर्यामी. अजूनी, जो पैदा ही नहीं हुआ है, अनबॉर्न राइट. सैभम, सैभम एक्चुअली जो स्वयंभू, हम लोग शंकर जी के लिए यूज करते हैं स्वयंभू. सैभम तो पंजाबी में बन गया स्वयंभू का सैभम. और सेज गुरु प्रसादी, ये गुरु प्रसाद से मिलता है भगवान. दैट इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ गुरु ग्रंथ साहब. एग्जैक्टली व्हाट भगवान इज सेइंग हियर, एग्जैक्टली सेम थिंग. आई एम श्योर जो अच्छे भाव है उनका कोई लिमिट नहीं है, कोई किसी किताब से नहीं आते. गुरु नानक जी ने भी चिंतन किया होगा, उन्होंने ये सब शास्त्र पढ़े होंगे, तो ये विचार उनके दिमाग में आया. अभी अभी हम लोग के जो मॉडर्न सिख भाई लोग हैं, उनको कई बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हिंदू धर्म से कुछ अलग है. कुछ अलग नहीं है, एक ही टीचिंग है. वो उन्होंने गुरुमुखी में कर दी, लेकिन आप देखिए एक एक संस्कृत शब्द, एक संस्कृत है ओंकार संस्कृत, सत संस्कृत का, नाम कर्ता संस्कृत का, पुरखु पुरुष, निर्भर, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभम, गुरु प्रसाद, एवरीथिंग इज, सारे शब्द संस्कृत के हैं. खाली उन्होंने उसको गुरुमुखी में फोनेटिक थोड़ा सा है, तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग है. एग्जैक्टली यही श्लोक है वो.
जैसा कि जैसा ही। तो गुरु नानक ने उसको सिंपल कर दिया था। गुरु नानक ने बोला था कि ये जो है निराकार है, आपको किसी मूर्ति नहीं बनाना है। बाद में उन्होंने कहा कि आप ग्रंथ साहब को पढ़ो। सो दैट्स व्हाट, निराकार की पूजा करते थे। तो भगवान भी यहाँ भी कह रहे हैं कि ओम तत्सत, ये भगवान है निराकार, आपको करना है साकार तो साकार की पूजा करो, बट जरूर नहीं। अगर लेकिन हमारे यहाँ जो थोड़े मॉडर्न आचार्य हैं, मेरे गुरुजी हैं, वो ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बोलते हैं मैं जब भी मंदिर में जाता हूँ मैं आई फॉलो दैट, उनकी टीचिंग। मेरे गुरुजी ने बोला आप मंदिर में जब जाते हो तो आप वेदर यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ भगवान राम और शिव जी और गणेश जी और दुर्गा जी, जस्ट लुक। एंड वैसे भी यू हैव, व्हेन यू लुक एट मूर्ति, यू आर नॉट लुकिंग एट मूर्ति, यू आर लुकिंग एट भगवान थ्रू मूर्ति। एंड दैट भगवान हैज नो पर्टिकुलर फॉर्म। वो तो कृष्ण के थ्रू आप भगवान को देख रहे हो, वो दुर्गा जी के थ्रू आप भगवान को देख रहे हो। दैट भगवान तो एक ओंकार ही है, वही ओम है, जो निर्विकार है, जो जिसका स्वरूप नहीं है, जो निर्गुण, निर्गुण नॉट त्रिगुण, निर्गुण में जो पर्टिकुलर शेप एंड फॉर्म नहीं है, दैट इज भगवान। तो ही से कि आप कृष्ण को देखो तो उसमें भी ओम देखो, दुर्गा को देखो तो ओम देखो, शिव जी को देखो, कि बिकॉज एवरीथिंग इज भगवान इज सेइंग ओम तत्सत, everything is at Om Tat Sat. And that's what say exactly the Granth Sahib. In fact, Om is used in all four tradition originated in Bharat. Of course, हिंदू में तो वेद में प्रणव आता है। पतंजलि योग सूत्र जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें तो एक पूरा एक जगह भगवान, पतंजलि तो सांख्य मानते थे, सांख्य में भगवान नहीं होते। सांख्य जो सिद्धांत है उसमें भगवान पर से नहीं मानते हैं वो लोग, जैसे हम लोग सना अद्वैत वेदांत में मानते हैं वैसे नहीं मानते। लेकिन एक जगह पतंजलि ने बोला है कि ईश्वर प्रणिधानात, ही सेज कि देयर आर मेनी वेज टू रीच समाधि। वो समाधि आसन करो, प्राणायाम करो, सब है, लेकिन वन ईश्वर प्रणिधानात, एक ईश्वर प्रणिधान भी एक रास्ता है समाधि पाने का। पतंजलि भी बोल गया एक जगह, ईश्वर ईश्वर प्रणिधान भी सरेंडर टू ईश्वर। एंड वहां उन्होंने बोला तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का नाम प्रणव है। प्रणव मीन्स ओम, वेद में ओम को प्रणव बोला है, प्रणव को ओम बोला है, प्रणव एंड ओम से नाम। तो पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र है, तस्य वाचक प्रणव, उस भगवान का नाम, वाचक मीन्स द नाम, डेसिग्नेशन, जो सेम यहाँ निर्देश बोला है, दैट इज ओम, प्रणव। तो पतंजलि माना है। जैन शास्त्र भी ओम को मानते हैं। उनके हम जो नमोकार मंत्र बोलते हैं उसमें जो पांच हमारे अरिहंत, आचार्य, सिद्ध, साधु एंड मुनि, पांचों के लिए जो नमोकार मंत्र है, नमो अरिहंतानम, नमो उपजायानम, नमो आरिहानम, वो पर्पस ऑफ दैट इज उन सबको, जो हम ओम शब्द जहाँ आया है, ओम का अटरेंस, उन सबको रिस्पेक्ट के लिए ओम बोला जाता है। जैन शास्त्र में ओम बोलते हैं। बुद्ध में तो ओम चैंट करते हैं, उनका मूल मंत्र है। जैसे गुरु नानक का एक ओंकार सतनाम बुद्ध का है, बुद्धिस्ट तिब्बतन बुद्ध दलाई लामा बोलते हैं ओम मणि पद्मे हूं, ओम मणि पद्मे हूं, दैट इज देयर मूल मंत्र। तो ओम से शुरू होता है। एंड दे आल्सो से कि ओम इज कॉस्मिक वाइब्रेशन, क्योंकि वो लोग भगवान को नहीं मानते। बुद्ध एंड जैन में नॉट ए फॉर्म है, जैसे पतंजलि नहीं मानते। लेकिन ओम दे एक्सेप्ट कि इट्स ए डिवाइन प्रेजेंस, इट्स ए डिवाइन वाइब्रेशन, इट्स समथिंग विच इज डिवाइन, विच इज निर्विकार, विच इज। हम लोगों ने सनातन धर्म में, जो हिंदुओं ने बोला कि ठीक है हम भगवान बना लेते हैं, तो हमने बना लिए, लेकिन है ओम ही, उसके फॉर्म दे दिए। तो देखिए सभी जैन, सिख, ऑफ कोर्स सनातन धर्म एंड बुद्ध, सब लोग ओम को मानते हैं। दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग कि ओम सबसे सिंपल नाम है भगवान का, सबसे सिंपल नाम भगवान का है। एंड वी नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे विल डू दैट, राइट। आई डू ओम चैंटिंग, दैट्स द रीजन। सो दैट्स अ वेरी वंडर, दिस श्लोक इज वेरी इन डेप्थ। ऐसा लगता है पढ़ के कुछ नहीं है इसमें, लेकिन भगवान ने बता दिया। हम लोग आरती करते हैं उसमें, ओम जय शिव ओमकारा, तो उसमें आखिरी में आता है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणव अक्षर इज ओम। तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, जो अविवेकी लोग हैं, द इग्नोरेंट पीपल, दे सी देम थ्री। बट नेक्स्ट लाइन में कहते हैं प्रणव अक्षर के मध्य, ओम अगर ड्रॉ करें, उस अक्षर के मध्य में तीनों एक ही है। देयर इज नो थ्री, देयर इज वन ओनली, एक ओंकार सतनाम। दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग इन दिस श्लोक में। तो एक्चुअली हमारी आरती, बहुत सारी आरती ऐसी हैं
कि उसमें एक ही है भगवान, वो उस समय आरती करते हैं तो मतलब फॉर्म, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। सो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग हियर, कि भगवान का जो नाम है ओम तत्सत है, ये तीन तरह का। एंड देन ही सेज कि जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो सृष्टि में वेद, वेद का मतलब कोई सिर्फ तीन वेद ही नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर थ्री वेद, चतुर्वेद, चार वेद हैं, लेकिन द वेद इज अ बुक, शास्त्र है, इज ए बुक ऑफ विधि। इट टेल्स यू द वे टू लिव। दैट्स व्हाट, हमारे वेदों में सब यही है कि कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे पूजा करना, एवरीथिंग एक लाइफ स्टाइल। वेद इज टेल्स द लाइफ स्टाइल कि ये करना चाहिए, दैट्स इट। अभी जैसे वेद में हमारे, अभी सिंपल एक मंत्र आता है, संगच्छ, आखिरी में ऋग्वेद का लास्ट है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अब पूरी टीचिंग के बाद इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ऋषि, संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ में चलो, साथ में वदत, ठीक से बात करो, बी इन द हारमोनी, देवा भागम यथा पूर्वे संजय, जैसे आपके एंसेस्टर्स ने किया, साथ में रहे, साथ में उपासना करो। दैट्स द इंस्ट्रक्शन दे आर गिविंग, सब बताने के बाद। सो वेद इज नथिंग बट गिविंग इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखिए श्लोक में आना, वेदा, फिर ब्राह्मणा। सो ब्राह्मण से मतलब यहाँ पर जाति ब्राह्मण की बात नहीं हो रही, जो अभी मॉडर्न डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ जाति प्रथा है। यहाँ पर ये ब्राह्मण वो नहीं, ब्राह्मण जो हम लोग आजकल मान के चलते हैं। द वन हु प्रमोट्स द टीचिंग ऑफ वेद, हु टेक्स द अंडरटेकिंग दैट आई एम गोइंग टू रीड इट and explain to others or implement in my life, implementer basically, that is brahman. It is not brahman by कि आप पैदा हुए तो जो या शर्मा जी हैं तो आप ब्राह्मण है, या त्रिवेदी जी हैं तो, that is not the goal here. So brahmana means the one who takes the anushthan, that I'll read whatever is given is the Ved, any shastra, and make sure that it is available to all those who cannot. So that's what, that is brahman. तो भगवान से पहले वेद बनाए, वेद में इंस्ट्रक्शंस हैं, देन देयर भगवान सेज देयर इज अ ब्राह्मण हु टेक द अनुष्ठान, अनुष्ठान मींस अंडरटेकिंग, दैट आई टेक, एंड दैट वाज द रीजन दैट द क्लास वाज क्रिएटेड बाय, आपका काम है आप पढ़ो और दूसरों को बताओ। दैट वाज ब्राह्मण, दैट वाज द ओरिजिनल, एंड दैट इज द डेफिनेशन हियर। एंड देन भगवान से उसके बाद भगवान ने यज्ञ बनाया। यज्ञ का मतलब कर्म। वी सॉ द होल डेफिनेशन ऑफ विनोबा जी की, यज्ञ मींस समाज और एनवायरनमेंट की टेक केयर इज यज्ञ, राइट, पंच महायज्ञ वी टॉक अबाउट। तो कितना सिंपल है, इंस्ट्रक्शन बनाए, जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, जो भी हैं, आरती भी हमारी वेदों में से ही आती है, सब कुछ। सुंदरकांड पढ़ो, जो हनुमान चालीसा, सब वेद के ही ओरिजिन है, सब में वो इंस्ट्रक्शंस हैं। विद्यावान गुणयति चातुर राम काज करे, हनुमान जी के एट्रीब्यूट बता रहे हैं, आप भी ऐसा करो, आप भी विद्यावान बनो। ये हनुमान जी विद्यावान है, उससे क्या होने वाला है? पर्पज ऑफ दैट इज लाइक दैट। So there is instruction, then there is someone who has to, all of us. If I decide, anybody can decide to be a Brahmin. If I want to follow the Vedic teaching, implement in my life, I take अनुष्ठान का मतलब होता है undertaking. We use the word अनुष्ठान, उपवास वगैरह में अनुष्ठान का मतलब होता है that संकल्प, that I'll follow this teaching, and of course spread the teaching. Then you are a Brahman. And then third thing is yajna. Through yajna that goes to the society. यज्ञ का मतलब ये कि इट इज व्हेन इट इज शेयर्ड विद एवरीवन, दैट इज यज्ञ। क्या बढ़िया डेफिनेशन भगवान ने, मेरे ये तीन नाम है ओम तत्सत, और ये मेरा तीन काम है, अब मैंने इस बना के दुनिया आपको दे दी, अब आप चलाओ। क्या बढ़िया मॉडल दिया भगवान ने इसमें। अब जैसे विनोबा जी ने बताया था, एग्जैक्टली सेम थिंग। आई एम श्योर ही हैज रेड द एंटायर चैप्टर एंड केम विद द मॉडल। दैट्स व्हाट भगवान से, ये सिंपल से मेरे नाम है, और अब आगे बता देंगे पूजा कैसे करनी है, और ये तीन तरीका रहने का। नाउ यू डिसाइड योर लाइफ, जब आपकी मर्जी। Now next श्लोक में भगवान will talk about little extra. I mean this श्लोक we can talk a lot, but it's wonderful, right? थोड़ा आप कभी उसको पढ़िए, चिंतन कीजिए, तो very very profound, right? So 24 श्लोक ना भगवान is telling कि उसका प्रयोग क्या है, ओंकार का कैसे करेंगे, ये कहाँ करते हैं। तस्मात् ओम इति उदाहरत्य तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदानः तपक्रिया यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई
यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। Therefore, with the utterance of Om are begun the acts of sacrifice, gifts, and austerity, as enjoined in the scriptures, always begun by students of Brahman. Yeah. Brahman. Brahma. So Brahman. now Yeah. Bhagavan is Brahmavadina means those who got the understanding of Brahman. But it doesn't mean that you वेद से ही आती है, कहीं से भी आपको जो भी वेद भी लोग ऋषियों ने चिंतन किया और लिखे, तो विधानोक्ता मीन अगेन शास्त्र विधि से, which is given in Ved. Bhagavan said, I created Shastra. Basically, I created the rule. It's a constitution of country. Country when we form, George Washington, they sit in the Philadelphia, that Liberty Center, they said, let's make the constitution first before we declare this as a country. When Thomas Jefferson sat for 172 or something like that, 72 days, there's a building where I love that. I went to that place, this room में बैठ के Thomas Jefferson, actually he was the one who drafted the whole constitution. कहीं लिखा हुआ वहाँ पर कुछ 76 days or some 176 days he sat there to draft everything. And then now we are going to announce the country. There is a constitution. The same thing in life का constitution है. भगवान says कि जो वेद मैंने दिए हैं, वेद means जो भी teaching, भगवद गीता is वेद. This is a constitution given to you. Just follow, right? And then भगवान says, उसके बाद जो वेद जो समझते हैं विधानोक्त प्रॉपर तरीके से यज्ञ दान और तप क्रियाएं करते हैं, जो पहले हम बता चुके हैं, यज्ञ दान और तप तीनों राजसिक. सो बट गोल इज सात्विक, दैट्स अ गोल हियर. इसलिए राजसिक तामसिक बताया पर करना नहीं है, नहीं तो देन प्रोग्रेस इज नॉट हैपन. बट वन वंडरफुल थिंग भगवान ये दैट ऑल दिस स्टार्ट विद ओम. इसलिए हमारे यहाँ जितने भी मंत्र होते हैं, पूजा होती है, ओम से शुरू करते हैं. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, हम लोग ओम से शुरू करते हैं, 3 बार ओम बोलेंगे, ओम शांति. सो एवरीथिंग भगवान सेज सततम ओम इति उदाहरत प्रवर्तन्ते. प्रवर्तन स्टार्ट होती है, एवरीथिंग स्टार्ट विद ओम, बिकॉज ओम भगवान का नाम है. नाउ इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ओम बोल दो एंड यू आर डन, क्योंकि भगवान का नाम है. बाकी भी तो सब भगवान के ही नाम है, लेकिन आप बाकी याद करना जरा कठिन है. मान लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है. मैंने 1000 याद रखना. ओम विष्णु सहस्त्रकार हो, वषटकार हो, भूत भव्य भगवत प्रभु भूत, ऐसे संस्कृत के नाम नहीं याद हो सकते. ओम सबसे बढ़िया. इसलिए ओम और राम दो नाम इतने आसान हैं और इतने सारगर्भित हैं कि जिसको हम बोलें तो वी विल डू दैट ओम ध्यान ऑल्सो, बिकॉज उस इसके पीछे आई मीन आई एम श्योर सम ऑफ यू डू ऑल योगा प्रैक्टिसेस एंड आप लोग करते होंगे कि जब हम ओम का वी विल डू दैट, वी हैव फ्यू टाइम मिनट्स. ओम का या राम का जब चैंट करते हैं तो आपको सब हमें सबको पता है कि there is a song also, that sound of silence, वंडरफुल सॉन्ग किसी का लिखा हुआ है कि साइलेंस में साउंड होता है. हम लोग भी सुनते, जब कोई गाना अगर आप सुने तो इसीलिए गाने के अंतरे के बीच में धुन आती है. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो. उसके बाद एक म्यूजिक आता है, देन यू डाइजेस्ट दैट भाव. ये गाना प्यारा इसलिए लगता है क्योंकि इस गाने में भाव है, लेकिन अगर पूरा एक ही बार में बोल जाएंगे तो आप यू डोंट गेट द भाव. सो देन देर इज अ ब्रेक देयर. ब्रेक में एक्चुअली भाव आते हैं हमेशा. फोनेटिक भी सारे गाँव वगैरह में भी जो म्यूजिक इज व्हेन द ब्रेक इज देयर. ऐसे हम लोग जब प्राणायाम करते हैं तो दैट्स व्हाट वी डू, राइट. प्राणायाम में इनहेल एक्सेल के बीच में यू डू द कुंभक, पूरक एंड कुंभक, द ब्रेक टाइम. सो उसमें तिब्बतीन ध्यान में तो उसको बारडोज बोलते हैं, दे प्रैक्टिस इट एक्चुअली. तो गैप में यू हैव टू होल्ड ऑन टू. अभी हम लोग भी जो ध्यान करते हैं उसमें एट द एंड वी जो ब्रेक आता है, ब्रेक गैप मीन्स व्हेन द माइंड इज नॉट, देयर इज नो थॉट इन द माइंड, देयर इज अ गैप. बहुत छोटा सा गैप आता है, वो गैप बड़ा होता चला जाता है साधना से, पर उस गैप में शांति है. दैट गैप इज एक्चुअली शांति. देयर इज नो सेपरेट शांति व्हेन देयर इज नथिंग हैपनिंग. सेम चीज म्यूजिक का आनंद उस गैप में है. तो भगवान इस कि अगर कुछ भी नहीं आता है तो ये ओंकार बोलो, और एक ओंकार बोलो उसके बाद के दूसरा ओंकार है, इतना काफी है. तो जब पूजा करनी है नहीं करनी, वो लड़के की विल डू दैट और ओंकार का जब एक स्टोरी के साथ विल एंड. देयर वाज अ लिटिल किड
उसको उसके पिताजी ने बोला भाई रोज पूजा करते हैं और ये सब सिखा, जो भी मंत्र बोलते हैं सुनता है ना? तो बोला हाँ सुनता हूँ। अब उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, आई मीन आई एम गोइंग ऑन वेकेशन फॉर 15 days 20 days, यू हैव टू डू पूजा एग्जैक्टली द होल प्रोसेस, राइट? अब वो चैलेंज करके बच्चे को चले गए, नहीं तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, जो भी होता था। ही सेड ओके आई विल डू दैट। और वो जब बैठा पूजा वो भूल गया, वो उसको याद ही नहीं आ रहा। तो उसने बोला भगवान अब ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, मैंने प्रॉमिस कर लिया, याद नहीं आ रहे हैं श्लोक। तो उसने कहा मुझे 12 खड़ी आती है, मतलब वो हमारी अल्फाबेट जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वो मैं आपको पूरी बोल देता हूँ। वो पक्का A to Z, या अ से जब शत्रज्ञ तक जो भी है, वो मैं पूरी बोल सकता हूँ, बाकी आप जोड़ लेना, आप तो भगवान हो, आपको क्या है। तो बस वो बैठा बैठा रोज बोलता। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, उसको दर्शन दिए। उसने कहा यार तेरी पूजा में तो मजा आ जाता है। तो जब पिताजी आए, उस पिताजी मुझे करता था क्या? बोले नहीं मुझे तो याद थे नहीं, मैं कर नहीं पाया, लेकिन भगवान खुश थे। तो बोले भगवान खुश थे? बोले वो तो आए एक दिन उन्होंने मेरे दर्शन दिए। तो तू सुना मंत्र? उसने कहा मंत्र तो मेरे को आते ही नहीं है। तो बोले फिर तूने क्या सुना है भगवान? बोले, मैं तो 12 घड़ी सुनाता था, बाकी वो जोड़ लेते थे। देखो, भगवान ओम काफी है। भगवान कह रहे हैं हर हर पूजा के पहले ओम लगता है, उतना ही काफी है। अगर बाकी का नहीं भी आता है तो ठीक है। दैट इज सो सिंपल। भगवान ने, कृष्ण ने बता दिया है कि पत्रम पत्रम पुष्पम फलम तो एवं 9th चैप्टर बोला। यहाँ उन्होंने पूजा की विधि बता दी कि ये यज्ञ है, ओम का जप ही यज्ञ है। और लेकिन हाँ, कर्म आगे बताएंगे, उसके साथ जो कर्म करना है उस जप के साथ, दैट इज यज्ञ, दैट्स इट। वो 11th चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को बोला है जब वो परेशान हो रहा था बहुत, महाभारत में भी आता है, तो भगवान ने बोला है कि यू युद्धश्च माम अनुस्मरः। तेरे को डर लग रहा है, युद्ध करने में डर लग रहा है, यू आर कंफ्यूज, युद्धश्च युद्ध तो तू कर, माम अनुस्मरः, मेरा नाम याद रख के युद्ध कर, कर गो हेड। मेरा नाम लेता रहे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो भी ओम सिंपल सा दैट, युद्ध कर, डोंट वरी, दैट इज दैट सिंपल। सो यहाँ पर भगवान ने, इसीलिए आई एम श्योर गुरु नानक देव जी गॉट फ्रॉम हियर, इसलिए उन्होंने बोला एक ओंकार सतनाम। 3 चीज बताई मुझे बड़ी पसंद है गुरु नानक जी की, उन्होंने 3 चीज बोली थी अपने भक्तों को। बोले थे कि नाम जपो, इसलिए जपू जी साहब तो पूरा नाम जपिए, राम का नाम उसमें 2500 बार आता है, 2500 बार जपू जी साहब राम का नाम आता है। तो नाम जपो, कीरत करो, अच्छे कर्म करो जिससे कीर्ति हो, समाज का भला हो, जो विनोबा जी भी कह रहे हैं। और वंड छको, बांट के खाओ, दैट्स इट। 3 उसके इंस्ट्रक्शन थे पूरे सिख समाज को, जो सभी के लिए हैं, सिख समाज के, हम भी यही करते हैं। यही ज्ञान से जो 3 चीज बताई भगवान ने, तब यज्ञ ध्यान, दैट्स व्हाट गुरु नानक जी से, उन्होंने उसको और थोड़ा सिंपल कर दिया। 3 ही चीज उन्होंने बता दी, यही भगवान ने बोला तप यज्ञ ध्यान, वही चीज है सेम। जब नाम जपो, कीरत करो, वंड छको, दान, यज्ञ तप करना है, दैट इज इट। सो आई थिंक विल कंटिन्यू, आई थॉट विल क्लोज द चैप्टर बट नेक्स्ट टाइम विल, तो विल, थोड़ा भी है टाइम, सो 5-6 मिनट है। तो ओम का लाइक बिकॉज भगवान ने बताया तो विल डू ओम। मैं करता हूँ, एंड कई लोगों को, मैं मेरे ऑफिस में ओम से तो नहीं कराता हूँ, लेकिन आई टेल देम टू डू हमिंग साउंड एंड दे डू इट राइट। तो ओम के भी देर इज अ टेक्निक व्हेन वी से ओम, बहुत ज्यादा उसमें टेक्निकल, जैसे आजकल लोग, कई लोग सिखाते हैं गुरु लोग, ऊ म, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भगवान, आई मीन एक पूरा उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषदों में सब बताया है कि ऊ म से ओम बना है, बट दैट्स वेरी टेक्निकल। ओम बोलना ही काफी है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। But whenever we say Om, it starts from the belly and it goes all the way to the different चक्र होते हैं, वो छोड़ दीजिए, हमें क्या करना चक्र। और यहाँ से ओम को जब म करते हैं तो देन होठ से बंद होता है, ओम। तो जब नेक्स्ट ओम आता है, उसके बीच में जो गैप है, वी कैन फील दैट, वो गैप जो है, ये तो भगवान का नाम है, और उस गैप में शांति है, फिर भगवान का नाम है, फिर शांति है, फिर भगवान का नाम है। ऐसे करते करते, जो नानक जी ने एक शब्द भी दिया, शास्त्रों में लिखा, पता नहीं योग सूत्र वगैरह में भी आता है, कि जब ये जप ऑटोमेटिक हो जाता है तो उसको अजपा जप बोलते हैं। देन यू डोंट डू जप। जैसे ब्रीदिंग के साथ, इसलिए बोलते हैं ब्रीदिंग के साथ जप करना चाहिए, कि धीरे धीरे जब बंद हो जाएगा, ब्रीदिंग चलेगी, और ब्रीदिंग के साथ ऑटोमेटिक साइलेंट जप चलेगा। सो जो छोटे छोटे साइलेंस है वो कंप्लीट साइलेंस हो गया, लेकिन ऑटोमेटिक अंदर पीछे राम का नाम या ओम, जो भी, दोनों सिंपल चलता रहेगा। दैट इज अजप अजप, एंड दैट इज व्हाट द बिगेस्ट साधना, उससे अच्छी कोई साधना ही नहीं है। सो लेट्स लेट्स सिट स्ट्रेट, we'll take a deep breath
we'll say six time Om, right? It takes 55 seconds or 1 minute to do 6 times, right? So, and then here are signs also. When we do the deep breathing and then exhale, then of course the parasympathetic system get activated, and all those things. मतलब science also agrees that मन शांत हो जाता है, basically. The thoughts stop, unwanted thoughts stop, right? That's what even neuroscience accept that, right? So again, for us, Om is Bhagwan ka naam. Bhagwan has said already that Om is Sat, Om is Tat. But Om is, all three are synonym, but Om is enough, right? And at the end, we say Tattvamasi, you are that. So while doing this, we'll take a deep breath, just follow this breath. And then when exhaling, saying Om, follow that Om sound. And when it stops, follow that. And before the next Om, there is a gap. Follow the gap also, hold on to the gap also. And by doing this few times, we'll see that the thoughts always, like almost, they stop, right? After this, we can do that Panchatattva Dhyan. Again, start with nostril and think of Prithvi Tattva. Then second is Jal Tattva. Keep the focus on tip of the tongue. Next is Agni Tattva. Want to focus on eyes and think of Agni or Surya Bhagwan. Next Tattva is Vayu. On the skin, we can feel Vayu. Keep the focus on the skin and feel Vayu. Next is Akash, which is space. Focus on ear and hear the Shabd or some sound, and feel that is sound travels in Akash. There is Akash around me, inside me. Now, Bhagavan says that that is in the 6th chapter, that we are not these senses. We are not even the mind behind these senses. When I say mind, Bhagavan, mind means not buddhi, not smriti, nothing is there. And after doing this Omkar, when we do this, you can observe the mind, because mind is very minimal thought, sometimes thoughtless. And that time we can observe the mind as we are observing those senses. And the one who is observing the mind is the Sakshi Chaitanya. That is Tat. And that's why our Rishi said Tattvamasi. That Tat is yourself. There is no outside Tat Bhagwan. It's all yourself. That's the ultimate statement, right? Tattvamasi. That Tat is you. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Jai Shri Krishna. Holy Krishna Kanhaiya Lal ki jai. Yeah. Yeah, so we'll conclude this next week, right? Yeah. बहुत सुंदर Yeah. अच्छा रहा